Thank you, everyone. Moving forward with our schedule, we will now move to our first core technical session, Spark Quest Introduction to Innovation and Design Thinking Principles. I request Mr. Raj Kiran Shankar, Sir, Assistant Director CSMC from Wadhwani Foundation, to please come on the stage. So very good afternoon, everyone. We are supposed to start in the morning, but अभी धीरे धीरे दोपहर हो ही गई है. तो we'll start with the session now. I, Professor Raj Kiran, along with Hi. So I'm Shyam. so we are gonna start with the IDE boot camp for this PM Shri School teachers and principals. So we'll be bilingual. We'll be using Hindi, English both. To start with, you all have understood why we have come here, why this boot camp, the concept of boot camp. Like in an inaugural session, ma'am was telling that it's army concept, right? So boot camp, ये जो concept है army से आई है. जब महायुद्ध हो रहे थे तब के ज़माने में जो अलग अलग देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे उस टाइम पे उनको लड़ने के लिए सैनिक नहीं मिल रहे थे. एंड फॉर इन दैट टाइम दीज कंट्रीज डिसाइडेड टू इंडक्ट कॉमनर्स in their armies. So how they can induct common people, common citizen in their armies without training them? So they invented this concept of boot camp. Just they will be trained for say 3-4 days or they say 1 week and they will be directly inducted in the army. So generally training of the armed forces takes 6 months or year or 2, but at the time of war, when it was not possible for these countries to train their citizens, so they started this concept of boot camp. And similar concept we are applying everywhere. So Wadhwani Foundation along with AICTE, Ministry of Education, conducting a lot of such boot camps because we are in a war-like situation. And why I am saying that? Because हमारी जो population है, now it is 140 crore. And we won't be able to provide job opportunities to 140 crore people. And this population is growing faster and faster. So that kind of creating that kind of opportunities is not possible at all. So we need more job creators than job seekers, right? हमें ज़्यादा job create करने वाले लोग चाहिए, entrepreneurs चाहिए, ज़्यादा business करने वाले लोग चाहिए, और वो सब कैसे हो सकता है? And that's the reason we are conducting boot camps for students and now for PM Shri schools as well. तो ये जो नवाचार का जो कॉन्सेप्ट है ये बस इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए पहले था. बस इंजीनियरिंग कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर्स होते थे. फिर धीरे धीरे बाकी कॉलेजेस में, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी इंक्यूबेशन सेंटर शुरू होना स्टार्ट हुआ. और अभी हम इस लेवल पे पहुँचे हैं कि अगर हमें एक स्टार्टअप हब बनना है, इंडिया को अगर स्टार्टअप हब बनाना है तो हमें इस लेवल तक जाना होगा. बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप, सर इज गोइंग टू टेल यू दैट नाउ, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ माइंडसेट. इट इज़ नॉट समथिंग वी बॉर्न विथ. ये माइंडसेट क्रिएट करने की ज़रूरत है. और वो माइंडसेट कहाँ से स्टार्ट होगा? तो वो स्कूल लेवल से स्टार्ट होगा. एंड दैट्स द रीज़न गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टारगेटिंग स्कूल्स नाउ कि स्कूल लेवल से ही ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट लोगों में, स्टूडेंट्स में आया जाए. एंड इसीलिए हम आज यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं और वही हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्या है, वो सर आपको बताएंगे. तो बिफोर आई हैंड ओवर टू सर, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टोरी. So wherever I go for a boot camp, I always start with a story. और सिंपल स्टोरी है. एक पुराने ज़माने की स्टोरी है. एक जंगल में एक साधु रहते थे, साधु महाराज रहते थे और उनके 2 शिष्य थे. तो वो साधु महाराज ने उन दोनों शिष्यों को बुला लिया अपने पास और उनको बताया कि मैंने अभी ऐसे सोचा है
कि मैं 12 साल की तपश्चर्या के लिए मैं हिमालय जाने वाला हूँ। हिमालय में जाऊँगा, 12 साल के लिए तपश्चर्या करूँगा और 12 साल बाद वापस आऊँगा। जबकि मैं 12 साल के लिए जा रहा हूँ, उन 12 सालों के लिए मेरे पास एक खजाना है, वो खजाना आप दोनों में दे के जाने वाला हूँ। और जब मैं 12 साल बाद वापस आऊँगा, वो खजाना आपको मुझे रिटर्न करना है, फिर से वापस करना है। तो दोनों शिष्य बहुत खुश हो गए कि साधु महाराज की हमने इतने दिन सेवा की है, तो साधु महाराज हमें जाते जाते खजाना दे के जा रहे हैं, और जब आएंगे तो देना है। 12 साल बाद क्या पता साधु महाराज आएंगे नहीं आएंगे। तो दोनों खुश हो गए। तो दोनों शिष्य आए साधु महाराज, जिस दिन जाने का टाइम था, जिस दिन साधु महाराज निकलने वाले थे, प्रस्थान करने वाले थे हिमालय की तरफ, उस दिन दोनों शिष्य आए और साधु महाराज को बोले, महाराज आपने बोला था कि आप जिस दिन जाओगे हमें खजाना दे के जाओगे, तो जो भी खजाना आप देने वाले थे हमें दे दीजिए और फिर आप प्रस्थान कीजिए। तो साधु महाराज ने झोली में हाथ डाला और झोले में से 2-2 चने निकाले, और पहले शिष्य को, चलो उसका नाम रख देते राम, उस राम को 2 चने दे दिए। दूसरा था श्याम, उसको 2 चने दे दिए। और साधु महाराज बोले, मेरे पास तो इतना ही है, मैं बस झोली लेके निकला हूँ, डोंट कनेक्ट विथ एनीथिंग एल्स। सो बहुत कम लोगों को समझ में आया। तो तो दोनों को चने दे दिए। तो उनको लगा था बहुत कुछ मिलने वाला है, तो उनको 2-2 चने मिल गए और साधु महाराज निकल गए। अभी क्या हुआ, 12 साल बीत गए। 12 साल बीतने के बाद साधु महाराज वापस आ गए। ये 12 साल भी कोइंसिडेंसली हो रहा है, मैंने ऐसे कुछ डिसाइड नहीं किया था। ठीक है। सो 12 साल बाद साधु महाराज फिर से वापस आए और पहले उन्होंने श्याम को बुलाया कि श्याम, मैंने जो आपको मेरा खजाना दे के गया था, वो खजाना कहाँ है? तो श्याम जो था वो बहुत आज्ञाकारी शिष्य था। उसने बोला, साधु महाराज आपने मुझे कुछ दिया है, तो मैंने पूरे भक्ति भाव से उसको मेरे घर में रखा। मैंने एक चांदी की डिब्बी बनाई और उस चांदी के डिब्बे में रखा, और वो मैंने जहाँ भगवान की मूर्ति है उसके पास में उसको रखा था। मैं 12 साल रोज उसको दिया लगाता था, रोज उसको नमस्कार करता था, और 12 साल में एक दिन भी ऐसे नहीं हुआ कि मुझे आपकी याद नहीं आई। जिस दिन मैं उस चांदी की डिब्बी को देखता था, मुझे आपकी याद आती थी, और मैंने पूरे भक्ति भाव से आपकी उसकी सेवा की है। वो बोले, वो सब तो ठीक है, मैंने तुम्हें जो खजाना दिया था वो मुझे वापस करो। तो उसने वो चांदी की डिब्बी साधु महाराज को दी। डिब्बी खोली, डिब्बी में क्या रहेगा? कुछ नहीं था, राइट? क्योंकि 12 साल बाद क्या होगा, आप 2 चने बंद डिब्बी में रखोगे तो क्या रहेगा? कुछ नहीं। तो साधु महाराज बहुत अस्वस्थ हो गए, मतलब मैंने तुझे इतना बड़ा खजाना दिया था और तूने गवा दिया उसको। तो फिर दूसरे शिष्य को बुलाया, राम को बुलाया। बोले, राम, मैंने जो खजाना दिया था वो खजाना कहाँ है? बोले, साधु महाराज खजाना देखना है तो मैं तो यहाँ ला नहीं सकता, आपको मेरे घर आना होगा। बोले, श्याम भी बोलने लगा कि ये घर क्यों बुला रहा है, 2 चने तो दिए थे, 2 चने के लिए घर क्यों बुला रहा है? तो बोले, घर भी नहीं, मैंने एक बहुत बड़ा गोडाउन खरीद लिया है, उस गोडाउन में आना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको खजाना मिलेगा। बोले, क्यों? बोले, चलो आपको दिखाता हूँ। तो ये जो राम था, राम ने क्या किया, वो चने जो है वो बोए, उसको सींचा, पानी दिया। पहले साल में उसको 1-2 किलो का उपज निकला। वो 1-2 किलो का उसने नेक्स्ट ईयर फिर से उसने वो बोया, सींचा, उसको खाद डाला, अच्छे से उसकी मरम्मत की। फिर तीसरे ईयर ऐसे हर साल 12 साल हर साल वो ऐसे करता गया। और 12 साल बाद जब साधु महाराज आए तो टन्स ऑफ चने की बोरियां भर भर के उसके गोडाउन में भरी थी, राइट? स्टोरी यहां खत्म होती है। तो आप मुझे बताइए, इससे आपको क्या समझ में आया? राम बनना है? जी मैम। यस जी सर।
राम बनाने हैं हमें। तो अभी जो स्कूल है, कॉलेजेस में, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में है, उसमें राम बन रहे कि श्याम बन रहे? श्याम बन रहे, राइट? और हमें बनाने राम है, राइट? तो इसलिए ये बूट कैंप है। सो हमें ऐसे सोचने वाले लोग, काम करने वाले लोग बनाने हैं कि जो आगे चल के जो नवाचार है, ये जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, उसका लाभ उठाए और जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे देश के लिए क्रिएट करे। ऐसे नहीं कि वो जस्ट भक्ति भाव से उसकी पूजा करे। हमने सीखा, डिग्री ली, अच्छे से उसको डिग्री को घर में टांग के रखा, इसके लिए नहीं। तो जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं उसका उपयोग करके, सदुपयोग करके हम नए नए अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए हमें ये नवाचार सीखना है। इसके लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप है और वही हम सीखने के लिए आए हैं। बट एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे मैनेजमेंट में या लीडरशिप में ऐसे बोला जाता है कि लीडर्स आर बॉर्न और दे कैन बी क्रिएटेड। सेम गोज विथ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? हमें लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस करना है, तो वैसे फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, राइट? जनरली हम कहते हैं ना, गुजराती मारवाड़ी है तो उनका तो ब्लड में ही है, राइट? यहाँ भी कोई लोग होंगे। तो हम जनरली, हमारा ये कहना होता है कि इनके ब्लड में होता है बिजनेस करना, हमारे ब्लड में नहीं है। इज दैट ट्रू? राइट? तो एंटरप्रेन्योरशिप भी सीखा जा सकता है, वो एक माइंडसेट बनाया जा सकता है और उसी के बारे में हम अभी स्टार्ट करेंगे। आई रिक्वेस्ट श्याम सर टू स्टार्ट विथ, सर विल गाइड यू थ्रू design thinking and what is entrepreneurial mindset. So over to you. So thank you, sir. So the very good morning to all the respected teachers. So पहले क्या हुआ कि so a few years back, maybe 5 years, entrepreneurship और innovation courses क्या, so ये तो engineering नहीं तो higher education, BSc, BCom, एक subject के, I mean they were introduced as a subject. So I'll use English and in between I'll use Hindi. हिंदी में उतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं, so मगर मैं हिंदी भी यूज़ करूँगा बीच बीच में। तो क्या हुआ कि so when so एंटरप्रेन्योरशिप नहीं तो इनोवेशन और प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक कोर्स जैसा रखा था ए हायर एजुकेशन में आफ्टर 10+2 के बाद। सो स्टूडेंट्स क्या कर रहा है कि so they took it as a subject only. So they were studying that subject. उसके बाद examinations लिख रहा था, so monthly examinations और end examinations, and they were getting pass marks. And after that, so वो subject खत्म हुआ. So the outcome of the subject, startups so startups are not forming, and we are not getting entrepreneurs and everything. So उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, so they started introducing so entrepreneurship a subject, so जैसे introduce नहीं कर सकते higher education में, so ये तो school में start करना चाहिए। तो mindset of students needs to be changed, so mindset of kids needs to be changed. So जैसा mathematics introduce कर रहे हैं और science subjects, languages, in the same way so entrepreneurship भी schools में introduce करना चाहिए। तो they have introduced, so they introduced design thinking courses. They introduced the technical courses also, like AI, ML और courses and product development courses, सब कुछ so शुरू हुआ। So उसके बाद क्या हुआ, so a PM Shri Schools concept भी आया था। So a PM Shri Schools concept ने so हर एक schools को funding भी मिल रहा, और parallelly Smart India Hackathon Junior, Smart India Hackathon Senior, so students क्लास 6, क्लास 7 सो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको 2 लाख में सो भी मिल जाता सो प्रोडक्ट्स करने के लिए। नाउ द प्रॉब्लम इज फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स वी हैव ट्रेन्ड सो टीचर्स हु हैव डिग्रीज इन मैथमेटिक्स, हु हैव ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फॉर साइंस, फॉर लैंग्वेजेस, एवरीथिंग। Entrepreneurship, so who needs to teach entrepreneurship now? Who needs to teach innovation now? So there were no proper so degrees. So few years back, maybe right now, so few institutions they were starting. So इसके लिए so a PM boot camps so start हुआ था. So IDE boot camps, innovation, design thinking, entrepreneurship boot camps.
So पहले for the success of Smart India Hackathon, or for the success of innovation in PM Shri schools, or for the success of Atal incubation centers, so we need to empower teachers first. So if the teachers are empowered, so क्या है कि entrepreneurship innovation जैसा sir ने explain किया था. So we all know this entrepreneurship innovation. We all are using these things in our daily life. We know how to do these things. But few terminologies or few mechanisms, few strategy. So we need to know those things. That's it. So remaining बाकी सबको सब I mean, so आप लोग ज़्यादा जानते हैं so compared to us by experience. But few terminologies which are new to us, so those the terminologies and through few mechanisms, few best practices, so we will introduce so in this course. So पहले so we will start so with this. See, 3 days. So this will not be like a regular classroom where we will deliver lectures and you will be listening, and then again so lectures. So this will be like more of interaction kind of things. और हमारी request जो है कि in 3 दिन, so we want all the teachers to come out of the teaching roles and kindly be our students for 3 days. So we should not hesitate, we should not shy in coming up with interaction, or we should not hesitate to present our ideas. So we want so all the teachers to come out of the teacher role for the next 3 days, and we want students, or students be good students. Now ये जो है क्या है कि so इधर तो so 9 items है, 9 items. So 9 items हम रोज़ so use कर रहे हैं. क्या है कि कॉफ़ी मग, किचन स्पॉन्ज और प्लांट पॉट, डोर मैट, अलार्म क्लॉक. So daily हर रोज़ so we will be using this the most of the items. Now when we are using this most of the items, we might have got frustrated. So कभी कभी प्लांट पॉट में से वाटर लीक होता, or in order to use so the kitchen sponge, so we may feel अरे so ये पकड़ने के लिए अच्छा नहीं, बहुत गंदा है. So जैसा frustration. Alarm clock, when it gets repeatedly so ringing in the early morning, we may get frustrated. Now क्या है कि so or coffee mug. So when we are so involved in other works, the coffee which is there or tea which is there, so it will not be that much hot again. So इसके बारे में so we want you to think, and can we change, or can we do something better? Can we improvise it? So sir, a coffee mug along with cap, if there is a cap already, that so that the coffee mug with caps are also available in the market. And so some coffee mugs display आ रहा, so temperature क्या है कि, और so few coffee mugs so they are coated with so the thermal inside, so the गर्मी नहीं चले जाएगी. So वैसा करें. Now इधर so for the next 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. हम नहीं, so आप so तुम्हारा व्यूज इधर एक्सप्रेस कर सकते हैं. Sir, so this is the problem. So this is the frustration I'm feeling with the alarm clock. ऐसा करे तो ये अच्छा लगेगा. A trash can. So इसको अगर हम so ऐसा modify करें तो so हम ये problem remove कर सकते. So those things. So once go through those topics. So you need not you need not think of very big things. Small, whatever the idea that comes to your mind, you can express. Whatever the idea that comes to your mind. So the first aspect in entrepreneurship or innovation is that so you need to come out of hesitation or shyness. We should not feel that अरे ये तो बहुत simple simple सा idea है. So बाकी लोग क्या समझते हैं इसके बारे में, और so why I need to initiate. So we need to leave all those things, all those hesitations or shyness. So एक बार please so look into those 9 things, and so you may express. So पहले frustration बोल दो, आपका frustration वो item से
एंड नेक्स्ट कैसा मॉडिफाई, सो ऐसा मॉडिफाई करे तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो इसमें ये फीचर रहे तो अच्छा रहेगा, और इंस्टेड ऑफ दिस अल्टरनेटिव भी है, इसे यूज़ करते हैं सो इसके प्लेस में, सो वैसा. I'm Sonali Billore from PM Shri Higher Secondary School, Machal. My problem is with coffee mug. Actually, I can't drink, very hot coffee. And if I wait for some time or I'm busy in doing other works, then it becomes cold. So I want to modify that coffee mug in a way that it should maintain the temperature I want according to my need. So it should be like that. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. सर आप हिंदी यूज़ करते हैं, आप इंग्लिश भी यूज़ करते हैं, सो दोनों लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं. अलार्म क्लॉक के साथ प्रॉब्लम है. सुबह जब गहरी नींद लगी होती है तब ज़ोर से चिल्लाते हुए जब अलार्म की क्लॉक जगाती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. मैं चाहूँगा कि उसमें कुछ ऐसा टोन सेट हो जो जिसमें बांसुरी की धुन हो या चर्पिंग ऑफ बर्ड्स या इस तरह से प्लीजेंट कोई चीज़ जो धीमे धीमे उसकी वॉइस बढ़े और मुझे इस तरह से उठाए जैसे माँ उठाती है, और इस तरह से मैं उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करना चाहूँगा. बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. और सुषमा शर्मा, जिला खंडवा, PM श्री मालूद से. मैं वाटर बॉटल के बारे में कुछ नया सोच रही हूँ कि उसमें अलार्म या सेंसर हो तो हमको याद दिलाए कि आपको पानी पीना है. काम में बहुत बिजी रहते हैं हम लोग, पानी पीना भी छोड़ देते हैं. यस मैम, यस मैम, थैंक यू. मैं आशीष बाहेती, दिग्ठान जिला धार PMC से. मैं कॉफ़ी मग में ये चाहता हूँ कि कुछ कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए कुछ कैलोरी शो हो कि हम कितनी शुगर डाल रहे हैं, कितनी कैलोरी बढ़ जाएगी, या कितना मिल्क डाल रहे हैं तो कैलोरी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो कैलोरी शोज हो जाए तो ज़्यादा बेटर है. बहुत सही है सर. सर मैं भी कॉफ़ी मग के बारे में ही सोच रही थी कि जो कॉफ़ी मग रहते हैं उसमें हम लोग कुछ इस टाइप से पेंट करें, जैसे अभी पर्यावरण बचाने का काम चल रहा है कि सब दूर पर्यावरण बचाना चाहिए, तो उससे रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स अपन उस पर बना दें तो हर घर घर में वो जाएगा और बच्चे भी उसको बचपन से देखेंगे तो उनमें ये नया चीज़ आएगी कि नहीं हम लोगों को पर्यावरण बचाना. तो ये चाह रही हूँ मैं कि सभी लोग उस पर ज़्यादा अवेयर रहे इसके माध्यम. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा. JD तिवारी, खरगोन डिस्ट्रिक्ट, जामली, PM श्री स्कूल. सर मैं डोर मेट के बारे में बोलना चाहूँगा. डोर मेट में क्या होता है, जैसे कि घर के बच्चे स्कूल चले गए सुबह और जो घर के बड़े लोग हैं वो ड्यूटी चले गए, या किसान लोग हैं तो खेतों में चले गए, उस समय महिलाएं घर में अकेली रहती हैं. अब मान लीजिए कोई आया, वो किचन में खाना बना रही हैं, कुछ काम कर रही हैं, तो अगर कोई अनजान व्यक्ति आया तो उनको पता कैसे चलेगा. तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि उसमें कुछ बजर वगैरह लगा दिया जाए कि बजर लग जाएगा तो पता चल जाएगा भाई चोर आया, कोई अनजान व्यक्ति आया. सर एक जो कचरे का डिब्बा है इस पे मेरा ये विचार है कि प्रत्येक घर में 4-4 कचरे के डिब्बे हों और प्रत्येक कचरे के डिब्बे में ऐसा चीज़ हो कि उसमें वही चीज़ खाद बन जाए, जो अपन ने कचरा डाला है उसका खाद बन जाए, उसमें ऑटोमेटिक ऐसा कोई लगा हो तो नीचे खाद निकले और दूसरे कचरे के डिब्बे में 4 दिन तक उसका खाद नीचे बन जाए, तो खाद भी उपयोग में होगा. और मैं अंजना शुक्ला, PM श्री शासकीय हाई स्कूल जवाहर टेकरी. हम लोग इको क्लब से संबंधित हैं. हमारी विनायका मैडम भी हैं इंदौर को जो प्रेजेंट करती हैं इको से संबंधित. ये जो प्लांट पॉट है इसमें मैं इनोवेशन करना चाहूँगी. अक्सर ऐसा होता है कि गमले में पानी डालने का हमको टाइम नहीं याद रहता. मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्पीकर लग जाए तो वो बोले कि मैं सूख गया हूँ, पानी डाले. मैं अलका भदौरिया, खलघाट PMC से हूँ. मैं लॉन्ड्री बास्केट के बारे में बात करूँगी. बीइंग अ वूमन, हम सभी महिलाएं घर में कपड़े जब धोते हैं तो अक्सर क्या होता है गंदे कपड़े लॉन्ड्री बैग में डाल देते हैं और जल्दी जल्दी में उठा के सीधा का सीधा वॉशिंग मशीन में. तो कोई कोई कपड़ों में कलर निकलता है. तो मैं चाहती हूँ कि जब बास्केट में जाए तो वहीं पर सेग्रीगेशन हो जाए कि ये कलर निकलने वाले कपड़े एक साइड हो जाएं, तो जब डालें तो ऐसी सुविधा हो जाएगी तो कपड़े दूसरे गंदे नहीं होंगे
कलर में कलर नहीं जाएगा। नए बच्चे बच्चियों को बोलो डाल दो तो उठा के डाल देते हैं, तो आधे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। दैट्स इट। सभी को नमस्कार। मैं राजेश लाड़ पीएमसी हाई स्कूल मोहनपुर खंडवा से। मैं कटिंग बोर्ड के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि कटिंग बोर्ड हम लोग होटल में भी और घरों में भी उपयोग में आता है। अक्सर ये कटिंग बोर्ड जो होता है लकड़ी का होता है, बार बार कटिंग होते हुए वो इतना छिल जाता है, तो जो कटा हुआ हिस्सा है जो कट रहा है वो कहीं ना कहीं से लकड़ी है या प्लास्टिक बोर्ड है, तो वो हमारे पेट में ही जा रहा है कटिंग सब्जी के माध्यम। तो कटिंग बोर्ड कुछ इस प्रकार के मटेरियल का बनाया जाए कि जिसमें कि एज भी, चाकू की एज भी ख़राब नहीं हो, और दूसरा वो उसका जो मटेरियल कटे वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं हो। सर मैं एक ऐसी वाटर बॉटल का निर्माण करना चाहता हूँ कि वो ये भी बताए कि ये पानी कब भरा गया है, इसका तापमान कितना है और इसमें टर्बिडिटी कितनी है, ये तीनों चीज़ें बताएं कि उपयोग के योग्य है या नहीं है। नाइस सर। सर मैं BAS भंवर PM श्री गुमानपुरा से हूँ। सर मैं प्लांट पॉट के बारे में मेरा व्यू है। जनरली क्या हम लोग कभी टूर या मतलब बाहर जाते हैं तो उस समय प्लांट के पानी की कमी की वजह से मुरझाने का सिचुएशन बनता है। तो प्लांट पॉट ऐसा होना चाहिए कि जब हम इसमें पानी डाल रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब करके और उसमें कुछ पानी स्टोरेज करके रखें ताकि बाद में उसका यूटिलाइजेशन हो सके जब हम लोग ऑन द प्रेजेंस घर में नहीं रहें। थैंक यू सर। बैठो सर, बैठो। सो प्लीज सिट एंड रिलैक्स। सो बैठ के बोल दो। मैं सर डॉक्टर संजय निम्बरकर PM श्री सूरजकुंड खंडवा। सर 2 चीज़ों के बारे में बोलना चाहता हूँ मैं, एक कटिंग बोर्ड और एक डोरमेट। तो कटिंग बोर्ड इस प्रकार का होना चाहिए कि एक चीज़ तो कटिंग बोर्ड में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो कचरा है अभी हाथ से उठाना पड़ता है और फिर फेंकना पड़ता है, तो उससे हट जाए और नीचे वो कचरा चला जाए, एक नीचे उसके ट्रे लगी रहे। दूसरा जो डोरमेट है, अगर डोरमेट अपन कहीं रखते हैं और कुछ समय तक वो वहीं के वहीं रहता है तो उसके नीचे पूरा धूल या मिट्टी पूरा जम जाता है। तो उसका जो लोअर पार्ट है डोरमेट का वो किसी ऐसे मटेरियल से बनाया जाए कि मिट्टी जो है उसके नीचे जमे नहीं, नीचे से भी वो उस चीज़ को एब्जॉर्व कर लें। ये जो ट्रस्ट कैन के बारे में मैं बोलता हूँ, ट्रस्ट कैन में एक QR कोड लग जाए जिससे बच्चे यदि उसमें कचरा डाले तो उनको एक पॉइंट मिले, जिससे उनमें भी स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता रहे और उनको ये मिले कि हाँ इससे हमारे को पॉइंट मिलेंगे और उसको कुछ भी इनोवेशन होगा। थैंक यू। यस सर, नाइस सर, नाइस। ये प्लांट पॉट है ना, उसके अंदर एक और QR कोड भी लगाया जा सकता है जिससे उस पौधे की जो प्लांट है उसकी उपयोगिता के विषय में बताया जा सकता है। मैं हितेश जोशी नीमच से। ट्रश कैन के बारे में मैं चाहता हूँ कि लाइक दैट टी टेबल, इस साइज़ का एक ट्रश कैन हो, उसमें 4 पार्ट हों। एक जिससे खाद बन सके, लाइक किचन से निकलने वाले प्रोडक्ट्स डाले जाए, एक में पेपर, रिसाइकल होने वाले प्लास्टिक, ग्लासेस, एक में जैसा अपना जनरल जो फेंकने लायक डस्ट वगैरह, ताकि जब हमारा मशीन वो लेने आती है गाड़ी तो हम उनके पार्ट्स को निकाल के डाल सके, तो वो सारा रिसाइकल भी हो जाएगा, हमारा मैन्योर फर्टिलाइज भी बन जाएगा, वो भी काम आ जाएगा। तो 4 पार्ट में होना चाहिए। लाइक लॉन्ड्री बास्केट जैसा मैम ने बताया, हमारे सारे घरों में कॉमन बास्केट होती है, जितना भी गंदा कपड़ा है सारा उसमें डाल दिया, उसमें भी पार्ट्स होना चाहिए। कलर वाले अलग कर दिए, बच्चों के कपड़े अलग कर दिए, जो ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है वो अलग कर दिए, तब वो जब हम लॉन्ड्री करते हैं तो उसमें यूज़ हो सके। एक मेरा किचन स्पॉन्ज और डोर मेट को लेके है कि ये दोनों जब बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं तो उसमें कई सारे ऐसे मटेरियल हो जाते हैं जो धोने पर भी नहीं निकलते, लाइक हेयर्स वगैरह। तो यदि उसमें कोई ऐसा सिस्टम हो, ऐसा बटन हो कि उसके अंदर की सारे पार्टिकल्स वो अलग से निकाल दे और वॉश इजीली हो जाए, तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सर, नाइस। ललित कुमार लोनारिया, PM श्री गर्ल्स अंजर, डिस्ट्रिक्ट बड़वानी। सर प्लांट पार्ट के बारे में बोल रहा था कि ये सीमेंट में भी है, मिट्टी में भी आते हैं और आजकल प्लास्टिक में भी आने लग गए हैं। तो ये बड़े और छोटे आकार में, तो इसके बजाय आजकल जो चल रहा है वो रूप प्लांटेशन में PVC पाइप चल रहा है, जिसमें मल्टी लेवल फार्मिंग भी हो सकती है। तो ये रूप इनका पाइप के रूप में होना चाहिए ताकि कम जगह में ज़्यादा पैदावार की जा सके
और जैसे मैडम ने बताया था भी कि इसमें पानी का ऐसा कुछ होना चाहिए, तो आजकल तो वो हो गया है क्या बोलते हैं उसको, ड्रिप लाइन वाला हो गया है। तो ड्रिप लाइन भी सस्ती पड़ती है और पीवीसी पाइप की फार्मिंग में आप वाटर बॉटल को उल्टा करके भी ड्रिप की तरह यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। Nice, sir. Sir, last one. Right. So thank you, sir. Thank you, and thank you, ma'am. So appreciations for every one of you. So thank you all. Give yourself a big round of applause. सर ये जो प्रॉब्लम्स आप बताया था, आपके पास सॉल्यूशन भी है, बट क्या हुआ कि सो इन व्यू ऑफ आवर बिजी शेड्यूल, स्कूल शेड्यूल और पर्सनल लाइफ शेड्यूल, हम फोकस नहीं देते प्रॉब्लम्स में, नहीं तो हम ये प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते। यार हमारे पास अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, अल्टरनेटिव करके सो विल मूव फॉरवर्ड एक्चुअली। बट क्या होता है, सो इफ वी फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर्टिकुलरली, सो इफ वी सिट ऑन दिस ओनली, अगर सो इसी प्रॉब्लम में हम चलो मैं सोल्यूशन इसको फॉर्मुलेट करता हूँ और सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट भी करूँगा और ये सोल्यूशन को मार्केट में भी रिलीज सो कर दूँगा। सो इफ़ यू कैन डू दैट, सो दैट इज़ नथिंग बट एंटरप्रेन्योरशिप। बट घर में हम क्या करते हैं कि नहीं तो स्कूल में हम क्या करते हैं, ऑफिस में, सो वी विल सॉर्ट आउट आवर प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी हम अल्टरनेट सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और हम चले जाते हैं। सो वी वोंट थिंक ऑफ मेकिंग इट कमर्शियल एक्चुअली। So this is what actually, so the main thing, so entrepreneurship में नहीं तो हम स्टूडेंट को क्या बताते हैं कि स्टूडेंट डायरेक्टली ही विल कम टू अस, और स्टूडेंट बोलेगा सर हमारे पास सोल्यूशन है, मेरे पास सोल्यूशन है, मेरे पास ऐप बनूंगा, सो आई डिज़ाइन ए मोबाइल एप्लीकेशन, नहीं तो ये IoT ये करूँगा वो करूँगा। सो वो पहला प्रॉब्लम के बारे में नहीं सो बताता, सो रिसर्च भी नहीं सो करता प्रॉब्लम के बारे में, क्या प्रॉब्लम है कि, but we know exactly what problem is, how to identify the problem. So that the real entrepreneurship or the real innovation, it starts from problem statement or problem identification. So we should not start from solution. So solution first step नहीं, maybe it may be a perfect or outstanding mobile application, so नहीं तो IoT solution, so नहीं तो something else. ना so that is not the first step. First step क्या है कि so problem identify करना. So और ये problem identification भी, so we need to identify from our day to day so life, whatever we are seeing, whatever we are experiencing, whatever the pain we are feeling. So that is what so the intention of this particular activity. There are few examples. एक example, छोटा सा example. So क्या हुआ कि when we are using the torchlight, so the torchlight, so the bulb will be present in front of the torch. So the area which is there, so the below the torch, it will not be covered. So the light क्या है कि so आगे आएगा, but so exactly so below the torch, so you'll find darkness. So one student, so what is proposed is, चलो we'll insert one bulb here also. Torch के नीचे भी एक छोटा सा bulb, so डालने से or darkness, so it can solve some solution. So headphones क्या है कि so why they should be always be on only black color or white color, multicolor headphones. So this is also an idea. And this is the problem that so electronic purse with paired watch, नहीं तो keys, चाबी, purse, belt, socks. So most of the times, so we will miss them in the house. We'll search keys. Where are my car keys? Where are my bike keys? So where is my wallet? Where I have kept my ID card? So we'll search so in the entire house actually. So अगर कोई solution है तो so easily I can identify my keys in the house, or easily I can identify the purse. So that is also a solution. Now there are some students, some kids who have come up with innovation solutions. So one such solution is this one. So Vinisha Umashankar, regular ironing cart. So ironing cart vendors जो है कि वो coal use करते हैं. They will be using coal. So since they are using the coal, there will be lot of carbon emissions, pollution, etc. So and so.
So daily we also will see that, we also will speak that coal use करने से lot of pollution, so pollution हो रहा, so इसका alternative नहीं है. तो so a student so ये propose किया कि solar ironing cart. So cart जो है कि so उसको solar panel लगा के, so from that solar panel, so she has connected to the iron box. So that is one particular solution which is given. So problem is a severe one. So the problem is a severe one. So there are thousands, millions of so ironing cart vendors actually. So the problem is great, but it is very simple. Now the solution, very simple solution. So always the solution should be simple. So the problem needs to be very big. Problem needs to be faced by a lot of people. The solution should be simple. So a solution should not be complex actually. So Harshvardhan Zala, so the drone, so he worked on drone for defense applications, army applications, so identification of landmines, so sab kuch. Or one student had Tenit Aditya, so now he is 24 years old. So he started innovation. He started innovation at the age of 8 years. At the age of 8 years, 7 years. So I have met him actually. So we invited him to our university also. So वो क्या बोला कि sir मैं जब 7 years old, 8 years old. So from then onwards I started exploring so these things. I was curious enough and I made some models with the help of banana peels. So with the help of banana peels, so he started making some items actually. So that is what his startup is. Now from then he started to programming. He entered into programming. He made some mobile applications. And then now he started venture studio in London actually. So from there, so he came back again. So he's training students into startups and all. So these are the examples of the people so who started their innovation in schools from 7 years, 8 years, 9 years, 10 years. So these are the live examples that so the innovation will be success when it starts early. Now iske baare mein. So this bootcamp, the title of this bootcamp is IDE Bootcamp. Innovation, Design Thinking, Entrepreneurship. Innovation, Design Thinking, Entrepreneurship. Now innovation क्या है और design thinking क्या है और entrepreneurship क्या है? Now what is the difference between discovery, invention, innovation? So first discovery, invention, next innovation, after innovation, so the next is so entrepreneurship, design thinking, all these things. Discovery जो है कि discovery of stars, discovery of new planets, or discovery of sea route to India, or discovery of electricity. So discovery, the thing is already existing in nature, or discovery of so Newton's laws, so gravitation energy. So discovery जो है कि so already nature में exist है, so we have explored it. We are not creating something new. Already it is existing, but the people didn't identify it. So someone explored and someone said that, so this is electricity. So this is some new star, or so this is a new place. So that is nothing but the discovery. Already existing, we are not creating new. Now the invention is completely creating new thing in laboratory. So invention of telephone, invention of bulb, so or invention of plane, so invention of some chemical drug. So new thing. So we are creating it so in the lab, or we are creating it so manually, man-made. So thing is invention. Now after invention, now this invention, if it is commercialized, see COVID drug, COVID के बारे में so हम discuss करें तो
So so as soon as the COVID has come, the scientists across of the world, they started exploring the drugs which can cure this particular COVID vaccines. Now the people will find out the formula which can fight this against this particular COVID. Inside the laboratories, first is chemical formula, some chemicals they will identify which can fight against this. So that is nothing but invention, completely new. So new chemicals, so mixing some chemicals, they are finding out some formula which can fight against this particular the COVID virus. Now this formula, they wants to make it commercial now. Now with this formula, they will approach pharmaceutical industries, they will take this formula and now they will go for creation of vaccines, multiple vaccines. So multiple vaccines. Now this is nothing but whenever the commercialization comes into picture, invention, so if it is multiplied by commercialization, whenever it is made as a commercialization, so then it is innovation. Now after that, entrepreneurship aayega picture mein. Now hospitals comes into picture, now the pharmacists, pharmaceutical shops comes into the picture, now the government comes into the picture, everyone comes into the picture. Government may do it at free of cost, but hospitals will charge it. And there will be some sub-vendors also who will be supplying this particular drugs and all. So that is nothing but the entrepreneurship. So पहले discovery बोले तो already which is existing in nature, but someone has explored it and said that, so yes, this is this. So invention is completely new, creation of new. Now if invention if there is no application of this invention, we cannot commercialize it. So now the formula which has been invented for this particular COVID, so if it is not made into this vaccines, no, we cannot send it to markets. So invention के बाद innovation आएगा, innovation के बाद so when it is on to a large scale market, whenever it is spread into the market people, so then entrepreneurship comes into picture. Okay, so I'll just add few things here. कि हम जनरली ये सारे जो वर्ड्स हैं हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं. हमें लगता है कि इनोवेशन, इन्वेंशन, डिस्कवरी सब एक ही है, बट उसमें जो फ़र्क है वो हमें समझना है इससे. जैसे सर ने बताया कि डिस्कवरी कैसे, जैसे ट्रेड रूट डिस्कवर हुआ. वास्को द गामा पहले इंडिया में आया, उसने इंडिया का मतलब इंडिया की डिस्कवरी की. इट वाज ऑलरेडी देयर बट ही जस्ट डिस्कवर्ड. या फिर जो अमेरिकानो था उसने अमेरिका का डिस्कवरी किया. तो थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, जो रूल्स है वो ऑलरेडी है, हमने बस डिस्कवर किया तो वो डिस्कवरी हो गया. अगर कंप्लीटली पूरा के पूरा हम कुछ नया लेके आते हैं तो हो गया वो इन्वेंशन. तो जैसे सर ने एग्जांपल दिए, जो थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जांपल है कि बल्ब का इन्वेंशन किया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है, राइट. पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था. मोबाइल का हो सकता है, राइट. टेलीकॉम टावर्स का हो सकता है. सो देयर आर मेनी साइंटिफिक थिंग्स कि जिसमें इन्वेंशन होता है. पूरी की पूरी चीज़ें नहीं आती हैं. अभी इससे आगे क्या कि हम पूरी चीज़ नहीं लाते, हम क्या करते, एग्जिस्टिंग चीज़ में कुछ बदलाव लाते हैं, कुछ नया सुधार करने की कोशिश करते, पुरानी प्रोसेसेस को और बेहतर बनाने की कोशिश करते, तो वो हो गया इनोवेशन. तो ये हमें एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी वे में हो सकता है. ऐसे नहीं कि हम बच्चों को बोले कि तुम कुछ नया ढूंढ के लाओ. जनरली हमारा एजुकेशन सिस्टम में आजकल क्या हो रहा है कि टीचर्स को हमें पेटेंट फाइल करने होते हैं, राइट. हमें कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर करने होते हैं. बट हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहुत कुछ दुनिया से बहुत कुछ अलग कर रहे. कभी कभी छोटी सी चीज़ हम छोटा सा चेंज भी कर देते हैं तो उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है. आपने कोलगेट का एग्जांपल सुना है? कोलगेट का एग्जांपल आपने सुना होगा, राइट. कि कोलगेट का सेल मतलब 1990s की स्टोरी है कि कोलगेट का सेल एकदम डाउन हो गया था, सेल नहीं हो रहा था. तो कंपनी ने एक रिसर्च कंपनी अपॉइंट की,
रिसर्चर को अपॉइंट किया और उनको बोला गया कि आप जाके मार्केट में रिसर्च करो कि हमारा प्रोडक्ट बेचा क्यों नहीं जा रहा है, या फिर हम एक जगह जाके एक लेवल पे जाके स्टक हो गए हैं, कितनी भी मार्केटिंग करो, एडवर्टीजमेंट करो, टीवी पे दिखाओ, उसके ज़्यादा सेल्स बढ़ ही नहीं रहा, तो क्या करे जाए। और सब लोग ऐसे रिसर्च कर रहे थे उसके ऊपर, बहुत उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे। और फिर एक नॉर्मल एक चपरासी था वहाँ काम करने वाला, उसने बोला कि जो उसका नोज़ल है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दो, सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कैसे? कि नोज़ल जब बड़ा हो जाएगा तो जब हम सुबह सुबह ब्रश पे ऊपर अप्लाई करने के लिए प्रेस करेंगे तो वो ज़्यादा आएगा और वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और जल्दी ख़त्म हो जाएगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। सिंपल है ना। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि छोटा सा हम इनोवेट कर देते हैं और पूरा मार्केट डिसरप्ट हो जाता है, राइट। हमेशा बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ओला उबर का एग्जाम्पल है, राइट। ये कोई तो एप्लीकेशन आप इसमें ऐड कर दो, या कोई एक नया फीचर को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ऐड कर दो, राइट, हो जाता है। जैसे अभी जब मैकडी वगैरह पे इंडिया में आए तो उन्होंने मैकडी महाराजा वगैरह इंडियन फ्लेवर्स में लाना चालू कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, राइट। पराठा में कुछ और ऐड कर दिया। आजकल ऐसे ही लोग कर रहे हैं ना कि एग्जिस्टिंग हमारे जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है उसको ही। और ये जो टूथब्रश की इंडस्ट्री है, इसी का अगर हमने एग्जांपल लिया, जैसे बोलते हैं कि जब पहली बार कोलगेट इंडिया में आया तब लोग क्या यूज़ करते थे? दातून यूज़ करते थे, नमक यूज़ करते थे, चारकोल यूज़ करते थे, कोयला यूज़ करते थे, राइट। हाँ, बिटको, निमको, राइट, दंतमंजन यूज़ करते थे। तो तब उन्होंने मार्केटिंग ऐसी स्टार्ट की कि ये सब तो गवार लोगों का है, राइट। अगर आपको एडवांस बनना है तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, हम तो कुछ नया लेके आए हैं। और आज क्या कर रहे हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? फिर से वही, क्या आपके टूथपेस्ट में अभी चारकोल, राइट, चारकोल बेस्ड फेस पैक आ गए हैं, चारकोल बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम आ रही है। मतलब जब हम सालों पहले कोयले से बर्तन साफ करते थे तब ये बोलते थे ये लोग इंडियन लोग गवार है। आज फिर से वही कोयला लेके आ रहे, बोल रहे कि इससे साफ करो या बहुत अच्छा साफ होता है। तो ये बस ट्रेंड चलता है, राइट। थोड़ा सा आप चेंज कर दो, उसमें बहुत कुछ चेंज हो जाता है। बट यही ऐसा नहीं कि हमें हमेशा इन्वेंशन ही करना है, बस अभी ये कॉन्सेप्चुअली हमें यहाँ ये समझना है कि कैसे चीज़ों से एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है। एक तो आप बहुत कुछ ऐसा लेके आओ कि कभी दुनिया में था ही नहीं, ऐसा कुछ लेके आओ। फॉर एग्जांपल कोविड वैक्सीन, ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं था, इन्वेंट करना पड़ा। देन इनोवेशन, उसमें जो एग्जिस्टिंग जो चीज़ है उसमें आप इनोवेट करो, प्रोसेस चेंज करके देखो, कुछ नया ला के रखो, कुछ ऐड करके देखो, नमक ऐड करके देखो, तो बदलाव हो जाएगा। और उसको जब आप कमर्शलाइज करते हो तो एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगी। कमर्शलाइजेशन इज द बेसिक थिंग। आप कितने भी पेटेंट कर लो, रिसर्च पेपर लिख लो, जब तक उसमें कमर्शलाइजेशन का एंगल नहीं आता, जब तक हम उससे पैसा नहीं बना पाते, तब तक वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बन सकता। ठीक है सर, प्लीज। तो आई ऐड वन मोर एग्जांपल। सो पहले तो उबर, उसके बाद ओला भी आ गया, उबर है, और उसके बाद रैपिडो आ गया। सो रैपिडो दे स्टार्टेड सेइंग, so 4-wheelers, 3-wheelers, so along with 4-wheelers, 3-wheelers, we'll add 2-wheeler also, bike also. Whoever is having bike, so they can also enroll with the Rapido and they can give services. So that is also innovation. So innovation matlab nahi, so we did not invent something great which will give us some Nobel Prize like that. No. There should be a problem, real-time problem. For real-time problem, some solution. And this solution should give us money. That's it. सो रियल टाइम प्रॉब्लम, और रियल टाइम प्रॉब्लम के लिए हम एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, इस सोल्यूशन को हमें पैसा मिलना पड़ेगा। इफ दिस सोल्यूशन विल नॉट गिव अस मनी, देन सो इट विल नॉट गेट सक्सेस। सो देयर इज अ स्टार्टअप, सो इन द नेम ऑफ दूधवाला, द बैंगलोर बेस्ड टू IT प्रोफेशनल्स। सो कैसे आया कि सो अराउंड 11 o'clock, 11:30, 12 o'clock
सो चाय बनाने के लिए सो देख रहा था एंड दे कुडंट फाइंड मिल्क एक्चुअली. ऑल द शॉप्स आर क्लोज्ड एंड दे कांट फाइंड एनी सोर्स फॉर गेटिंग मिल्क इन बैंगलोर. तो इमीडिएटली क्या किया कि चलो हम एक एप्लीकेशन मॉडल बना के सो ये ऐप रिलीज़ करेंगे. नाउ ये ऐप सो वी विल कनेक्ट दिस ऐप टू डायरेक्ट डेयरी फार्म्स. So whenever the people want milk, they can open this app, they can order and they can get milk from that. So then immediately वो शुरू किया था ऐप बनाने के लिए. So 6 months they released the app, but it was not successful. Then so directly they said that we will give you the quality milk so in the city, the quality milk at a low price. If the market price is around 40 rupees, we will give you at 35 rupees only. So that too, the quality milk. So investments आ गया उसको. So crores of investments and it was success. बैंगलोर के बाद so पुणे में ब्रांच भी खुला so शुरू किया था. उसके बाद हैदराबाद. But बीच में क्या हुआ कि when they were giving the milk at a very less price compared to the market, they were unable to meet their expenses. So why? Because they need to provide the milk. Along with the milk, they need to maintain the mobile application, servers, database, and the services. So because of all these, they were unable to maintain this financials, and then the startup got closed. So the finance is very important thing. The commercialization is very important thing. So in this particular entrepreneurship journey. Now design thinking. सो डिस्कवरी हो गया, इन्वेंशन हो गया, इनोवेशन हो गया और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप भी हो गया. नाउ डिज़ाइन थिंकिंग बोले तो नाउ डूइंग दिस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप और डूइंग दिस पर्टिकुलर इनोवेशन फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू विथ कस्टमर सेंट्रिसिटी. So who is your final user? The customer. Customer is my final user. So we need to understand the expectations, the desires, or the frustrations. So everything related to the customer, and accordingly हम design करना चाहिए. So we should not leave the customer. We should not think that I'm a very good mobile application designer. मैं पहले तो मैं mobile पूरा application पूरा design करूँगा और release करूँगा. जो चाहे वो use करेगा मेरा mobile application नहीं. So वैसा नहीं चलता. So पहले we need to research about the customer. कस्टमर को क्या पसंद है, कैसे आप डिज़ाइन करने चाहिए उसमें. इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हिंदी भी होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में ऐड करना चाहिए, और यूज़र इंटरफेस कैसा होना चाहिए. तो किसे हम टारगेट कर रहे हैं. ऑडियंस ऑफ सिटीज़ और ऑडियंस ऑफ विलेजेस. ये सब आफ्टर लुकिंग इनटू एवरीथिंग देन वी नीड टू गो फॉर द डिज़ाइन थिंकिंग. Now design thinking, so before this design thinking, so there is an activity. A छोटा activity. Now इस activity पे आप पूरा 2 members pairing, 2 members will be one group. So the person who is sitting besides you, will be your group member. So in these 2 members, one member needs to prepare a small snacks packet. उसमें चिप्स रखने के लिए, नहीं तो मिक्सचर रखने के लिए, समोसा रखने के लिए. आपके पास तो पेपर्स है, स्क्रिबल पैड है, और else you can use anything which is available with you. So now prepare a snack packet for the other member who is present in your group. The other person, so imagine as if there is your customer. One person is customer and the one person is the vendor or else the manufacturer. Now this person should prepare this snacks packet. उसके लिए snacks packet prepare करना पड़ेगा. जो आपके साथ में जो बैठे हैं वो आपके कस्टमर्स हैं. हाँ. मतलब मैम आप इनके कस्टमर हो, आप इनके कस्टमर हो. आपको इनके लिए एक स्नैक का पैकेट बनाना है, आपको इनके लिए बनाना है. कोई भी कागज़ यूज़ करो, कुछ भी कागज़ जो भी है आपके पास, जो चीज़ें है, जस्ट 2 minutes. इसके पीछे बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है. क्विकली 2-3 मिनट में. इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, आपने सबने बनाया, मैम ने तो 2-3 बनाए हैं, बट जिनके लिए बनाना था, क्या आपने उनसे पूछा कि आपको क्या खाना है?
ये देखो हाँ सर जी। सर बोल रहे हैं कि उनके पड़ोसी ने उनको दवाई का पैकेट मांगा था, तो उन्होंने बिल्कुल अच्छा सा दवाई का पैकेट बनाया है। हेलो। तो ये हो हाँ सर गई, जी। हो गई एम्पैथी। सर हाँ, ये मैंने 2 स्नैक्स के लिए बनाए हैं, 2 अलग अलग, एक ही पेपर में 2 स्नैक्स। आपके कस्टमर कौन है? मैडम मैडम, हम मैडम को दीजिए, मैडम को दीजिए। मैडम आपको जरूरत है इसकी? आपने बोला था इनको? नहीं नहीं नहीं। ये हमारे कस्टमर से बात करें आप हमारी। मैंने मैडम से बोला कि मुझे प्रोटीन बिन्स चाहिए कैरी करके ले जाने के लिए, कैरी बैग के रूप में, तो इन्होंने कैरी बैग ही बना दिया ताकि मैं उठा के घर भी ले जा सकती हूँ इसको, है ना। तो ये बहुत अच्छी बेचने वाली हैं, सेलर हैं। देखिए, कस्टमर फीडबैक। सो यहाँ पे सर का ये बेसिक कॉन्सेप्ट सर यही चेक कर रहे थे इस एक्टिविटी से, कि जैसे हमें बताया गया कि हमें स्नैक का पैकेट बनाना है, और सर ने ये भी बताया कि आपको जो आपका नेबर है उसके लिए बनाना है, वो आपका कस्टमर है, बट वो किसने नहीं सुना, सबने अपना अपना बनाना स्टार्ट कर दिया, राइट। आपको चना पसंद है बट मैम को चना पसंद है क्या, आपने उनको पूछा। जैसे किसने झालमुरी के लिए बनाया, बट नहीं वो अब तो आप वो मैनेज कर रहे हो। आप फोर्स कर रहे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि सर, सो डिज़ाइन थिंकिंग में एम्पैथी। सो एम्पैथी बोले तो हम कस्टमर्स तो पहचानना, सो उसको वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द कस्टमर, वी नीड टू अंडरस्टैंड हिम। सो मैं बोला था, सो वन शुड एक्ट एज ए कस्टमर एंड द अदर पर्सन विल बी द मैन्युफैक्चरर। सो इमीडिएटली जब मैं बोला था, सो एक स्नैक पैकेट बनाना चाहिए आपका कस्टमर के लिए, आपके लिए नहीं, तो आप क्या करना कि व्हाट वी एक्सपेक्टेड इज, और एल्स व्हाट जनरली वी नीड टू डू इज, हम कस्टमर से पूछना चाहिए, सो आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, स्नैक्स पैकेट का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कैसे बनाना चाहिए, सो एवरीथिंग, देन वी नीड टू स्टार्ट डिजाइनिंग थिंग्स। सो मगर क्या मोस्टली क्या होता है कि, सो as soon as we know the problem, or without the knowing problem itself, so that the people will start designing the solutions. So start designing the solutions. So this is the reason most of the startups are failing. So empathy is the first one, where we need to understand the customer properly, so before we work on it. पहले problem identify हुआ था, then उसके बाद, so when we are the problem statement has been done, then हम अब डिज़ाइन करना स्टार्ट किया था। Now ये डिज़ाइन प्रोसेस में पहला स्टेप, so empathy. So design thinking steps, so we know this terms, so terminology क्या है कि इधर empathize, define, prototype, ideate, test, terms may be new for us, लेकिन सो ये सब के सब सो हम रेगुलरली भी यही करते हैं। तो पहला, सो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस इट स्टार्ट्स फ्रॉम एम्पैथी। सो एम्पैथी क्या है कि सो आपका कस्टमर को जानना, पहचानना, उसका क्या चाहिए, सो सब कुछ, सो अंडरस्टैंडिंग सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट डिफाइन, सो नाउ ए प्रॉब्लम को प्रॉपरली वी नीड टू डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, ए प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, सो ब्रॉड टर्म्स नहीं, सो एग्जैक्टली स्पेसिफिकली वी नीड टू डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सी पहले स्टेप में और दूसरा स्टेप में वी आर नॉट डिस्कसिंग रिगार्डिंग द सोल्यूशन, वी आर डिस्कसिंग ओनली रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ओनली। द सोल्यूशन डजंट सो कम्स इनटू द पिक्चर। फर्स्ट स्टेप understanding customer, second step defining the problem properly. So 2 steps, so they are not related to the solution. Then ideation. So problem identity हुआ और problem को define भी किया था। हम क्या करते हैं कि सो हमारा टीम, सो अभी तो 3-4 मेंबर्स है, तो चलो ग्रुप डिस्कशन, डिबेट और एल्स सो वॉट एवर विल बी, चलो इस प्रॉब्लम को ऐसा सॉल्व करते हैं, यस ऐसा भी सॉल्व करते हैं, सो दैट्स द सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड। सो मल्टीपल आइडियाज़, ये मल्टीपल आइडियाज़ में बेस्ट आइडिया हम पिक करते हैं और सो वो आइडिया, सो उसके साथ प्रोटोटाइपिंग बोले तो सो वर्किंग मॉडल, सो सोल्यूशन। अब ये प्रोटोटाइपिंग सक्सेस हुआ तो नेक्स्ट इज सो द टेस्टिंग
and after testing, so we'll release into the market. So the first 2 steps so related to the problem statement only, and after that ideation. So we will go for multiple ideas. So सुनने के बाद so उसमें से best idea को pick करके और best idea को हम prototype बनाते हैं. So उसके बाद testing. So these are the 5 steps which are involved in so design thinking process. So जब students so comes to us so regarding their participation in Smart India Hackathon or different competitions, innovation competitions, so we need to ask them so these questions only. So so have you identified the problem? Yes. So हमारे customers के साथ interact हुआ. Suppose if he says so so I am doing some drone or else IoT project for farmers. We need to ask him, have you interacted with any farmers, or did your father interacted with any farmers? Have you come across any farmers, at least 1 or 2? Have you understood their problems? Then after that, empathy is closed. Then the definition of the problem. उसके बाद ideation. So ideation में पूरा class पूरा so मिलके एक best solution को निकालते हैं और उसके बाद prototyping. So this is what we need to follow. So एक बहुत अच्छा statement है. हम बहुत फिल्मी लोग हैं, प्यार मोहब्बत की बातें बहुत करते हैं, राइट? तो एक स्टेटमेंट है कि डोंट फॉल इन लव विद द सॉल्यूशन, फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम. और जब भी एंटरप्रेन्योरशिप की बात आएगी और डिज़ाइन थिंकिंग की बात आएगी, ये स्टेटमेंट आपको याद आना चाहिए. डोंट फॉल इन लव विद द सॉल्यूशन, फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम. हमारा जनरली क्या होता है, बच्चे हमारे पास आते हैं, जैसे मैं इससे पहले इंक्यूबेशन सेंटर में नोडल ऑफिसर था, तो बच्चे आते थे कि सर हमने एक एप्लीकेशन बनाया है, अब मुझे सेल करना है, या फिर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, अभी मुझे स्टार्टअप करना है. बट उससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है? सो सबसे पहले हमें एम्पथाइज करना है. मतलब क्या करना है कि हमें कस्टमर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो पहले समझना है. और जब तक वो नहीं समझते, हम कितनी भी, देखो हमारे यहाँ अभी इंडिया में 2 लाख से भी ज़्यादा स्टार्टअप है और मोस्ट ऑफ देम आर फेलिंग. क्यों? क्योंकि वो कस्टमर की नीड ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. सो सबसे पहली स्टेप यही होनी चाहिए कि आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड्स. कस्टमर को चाहिए क्या वो तो पहले समझ लो. अगर वो हम नहीं समझ पाएंगे तो हम स्टार्टअप नहीं बना पाएंगे, अलग कुछ नहीं बना पाएंगे, राइट? तो बहुत बार ऐसे होता है कि कस्टमर को खुद पता नहीं होता है, लेटेंट नीड्स जिसको बोलते हैं, कस्टमर को खुद पता नहीं होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए. बट कस्टमर क्या, इसीलिए डोंट जंप टू द सॉल्यूशन, पहले कस्टमर की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो. तो एक छोटा सा एग्जांपल था, जैसे आपने डायरेक्टली पेपर लिया, बैग बनाना स्टार्ट किया, आपने कस्टमर से पूछा ही नहीं, आपके पास वाले पर्सन से पूछा ही नहीं कि उसको क्या चाहिए. और यही जो गलती है मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में अभी कर रहे हैं कि वो जाके रिसर्च करना चाहते ही नहीं है. बड़ी बड़ी कंपनियां देखो आप, ITC है, वो सारी जो कंपनीज है, उनका करोड़ों रुपए का बजट होता है हर साल का रिसर्च के लिए. जैसे मार्केट में रिसर्च कंपनीज है, जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट मार्केट्स एंड मार्केट्स में जॉब करते हैं, निल्सन IQ में जॉब करते हैं, ये सारी रिसर्च कंपनियां हैं. तो ITC जैसी बड़ी कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो पहले वो मार्केट्स एंड मार्केट्स के पास जाती है, बोलती है कि आप मार्केट में जाके सर्वे करो और पता करो कि कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है. उसके बेसिस पे वो डिसाइड करती है कि वो प्रोडक्ट आगे चलाना है कि नहीं चलाना. और हम एक छोटा सा सोल्यूशन लेके आते हैं और हम बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूँ ना सोल्यूशन है, तो यही सोल्यूशन है. हम ये नहीं चाहते कि हम कस्टमर को जाके पूछे कि भाई तुझे पसंद आ रहा है ये और इसके लिए मैं बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ. EV मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आजकल बहुत चल रहा है, सब जगह बोल रहे कि EV चल रहा है, EV चल रहा है. देयर आर 2 कंपनीज, एक बिग कंपनी है ओला जो EV सेक्टर में एंटर किया उन्होंने, और दूसरी एक कंपनी है चेतक, उन्होंने भी सेम टाइम पे EV सेक्टर में एंटर किया. जब चेतक ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा, चेतक लॉन्च टेस्ट मार्केटिंग इन केरला मार्केट. केरला में एक डिस्ट्रिक्ट उन्होंने सिलेक्ट किया, उस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने टेस्ट मार्केटिंग की. मतलब उन्होंने अपना प्रोडक्ट सेल करके देखा,
जब उनको पता चला कि उनका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है और अच्छे से लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं, बैटरी लाइफ भी अच्छी चल रही है, तब जाके उन्होंने नेशनल लेवल पे लॉन्च किया। इसके अपोजिट ओला ने क्या किया, उन्होंने टेस्ट मार्केटिंग किया ही नहीं, डायरेक्टली नेशनल लेवल पे लॉन्च कर दिया। और जैसे ही नेशनल लेवल पे लॉन्च कर दिया, बैटरियां जलने लगी, गाड़ियों में आग लगने लगी, लोग मरने लगे। तो इतनी बड़ी कंपनी होते हुए भी उन्होंने जो सिंपल फंडा था कि पहले टेस्ट मार्केटिंग करो, पहले कस्टमर को यूज़ करके दिखाओ, कस्टमर को पूछो कि उसको क्या लग रहा है, और उसके बाद नेशनल लेवल पे लॉन्च करो, एंड वहीं पे ओला फेल हो गई। अभी बाकी कंपनीज आ रही है, बट जो कस्टमर का ट्रस्ट था ओला पे, क्योंकि ओला एक ब्रांड था, वो तो चला गया ना। तो बिग कंपनीज भी ऐसी मिस्टेक करती है, और यही मिस्टेक अगर हमें अवॉइड करनी है, पहले हम डिज़ाइन थिंकिंग की इतनी बात नहीं करते थे। एक लास्ट 5 ईयर से आप देखो, 5-6 ईयर से हर कॉलेजेस में, MBA कॉलेज में डिज़ाइन थिंकिंग पढ़ाया जाता है, सब जगह पे डिज़ाइन थिंकिंग पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें कस्टमर सेंट्रिक डिज़ाइन, हम जो भी सोल्यूशन लेके आ रहे हैं वो कस्टमर सेंट्रिक है क्या, तभी वो आगे जाके चलेगा, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा। एंड दैट्स द रीज़न दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो एम्फेथाइज करो, कस्टमर का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, समझ लो, उससे बात करो कि उसको प्रॉब्लम हो क्या रही है। नहीं तो उसको प्रॉब्लम, उसका सर दुख रहा है, आप किसी और चीज़ की दवा दे रहे हो, तो वो तो चलेगा ही नहीं ना, राइट? तो एम्फेथाइज करना, उससे बात करना, कस्टमर सर्वे करना, और समझ लेना कि कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या है, और उसके बाद उसको डिफाइन करो कि व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉब्लम। हियर इट कम्स द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम को समझो। उसके बाद थर्ड प्रोसेस आती है आइडिएट की। तो आपने प्रॉब्लम समझ लिया, उसका मतलब इमीडिएटली सॉल्यूशन नहीं देना है। कि हमारे यहाँ जनरली ऐसे होता है कि रुपीस की प्राइस गिर रही है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो चलो ये कर दो, मतलब हम ऐसे फट से सॉल्यूशन दे देते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम का। बट ऐसे नहीं होता है, देयर आर बहुत सारे कॉम्प्लिकेसीज होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, हम बस एक एंगल से देखते हैं। जैसे फार्मर्स के बारे में बहुत बार ऐसे होता है। आई वेंट टू IMC, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है दिल्ली में, एशिया का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजिकल इवेंट होता है। तो वहाँ पे आई मेट अ गाय कि जो एक ऐसा IoT डिवाइस लेके आया था कि वो प्रॉब्लम, फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो मैंने उसको पूछा, बेटा क्या सॉल्व करेगा? बोले ये सर 3 लाख का डिवाइस है, ऐसा बहुत बड़ा स्टेबल जैसा इतना बड़ा डिवाइस था, और वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली पंप ऑन करेगा, मोटर जब बंद करेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी वो चलेगा, या फिर मॉइस्चर कंटेंट चेक करेगा, सॉइल क्वालिटी चेक करेगा, और वो सब देगा। तो मैंने उससे पूछा, आपने कस्टमर को पूछा, मतलब फार्मर से किसी से बात की कि अगर आप मार्जिनल फार्मर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो क्या वो 3 लाख इन्वेस्ट कर पाएगा? और उससे ही ज़्यादा सेम प्रोडक्ट जियो कृषि और जियो किसान 15 से 20 हज़ार में दे रहा है, वही सेम सेंसर्स वगैरह यूज़ करके। तो आप जिसको टारगेट करना चाहते हो उसका ये तो समझ लो कि वो उतना पैसा दे भी पाएगा, उसकी प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये हम समझने की कोशिश नहीं करते। और वो समझने की कोशिश करने के बाद हम अपना सोल्यूशन देने की कोशिश करते कि मैं समझता हूँ कि वो सोल्यूशन है। और बहुत बार ऐसे होता है कि प्रॉब्लम बस हमें लगती है कि वो प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, बट मे बी यू मे नॉट बी थिंकिंग दैट, क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है वो आपको नहीं लग रहा होगा, या आपको कुछ और प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। सो हमें ये डिसाइड, जब हम एक दूसरे से बात करेंगे तो हमें पता चला कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, समझ में आ रहा है। और उसके बाद में सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं, डोंट जंप टू द सॉल्यूशन, आइडिएट कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या रहेंगे। एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, राइट? एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उस ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन क्या है, या फिर सब ऑप्शंस को क्लब करके क्या हम एक अच्छा ऑप्शन बना सकते हैं, तो वो होगा आइडिएशन। वो आइडिएशन होने के बाद वो सारे फीचर मिक्स करके हम एक डमी प्रोडक्ट बनाएंगे, एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, और उसको टेस्ट करके देखेंगे कि क्या वो वर्क कर रहा है। अगर वो वर्क कर रहा है
तो फिर आगे जाके हम उसको फाइनल प्रोडक्ट MVP जिसको बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाएंगे, देन फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर मार्केट में लॉन्च करेंगे। ऐसी ये सारी प्रोसेस फॉलो करनी होती है। अगर ये प्रोसेस बच्चे अगर फॉलो नहीं करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। एंड दैट्स द रीज़न बहुत सारी स्टार्टअप इंडिया में हो रही है, बहुत सारी स्कीम्स है, सब कुछ है, फिर भी स्टार्टअप्स फेल हो रही है। और हम अगर चाहते हैं कि बच्चों को ये पहले से पता हो जाए, अगर बच्चा आपके पास आता है कि सर मेरे पास ये सोल्यूशन है, मैंने बहुत बड़ा जुगाड़ ढूंढ लिया है, ठीक है, उसको बोलो ठीक है तूने ढूंढ लिया होगा, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, पहले जाके मार्केट में रिसर्च करो, लोगों से बात करो, राइट? तो उसके क्या मायने हैं, क्या कस्टमर एक्चुअली सोच रहा है उसके बारे में, वो हमें पता चलेंगे और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो फुल प्रूफ प्रोडक्ट बनेगा और वो कस्टमर प्रोडक्ट लेगा भी, क्योंकि कस्टमर को पूछ के आपने प्रोडक्ट बनाया है, कस्टमर की प्रॉब्लम्स ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाया है, तो कस्टमर उसके लिए पे करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। ठीक है सर? तो सो वी विल डू दिस एक्टिविटी सो टू अंडरस्टैंड एम्पैथी क्या है कि एग्जैक्टली सो इसको समझने के लिए एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी का एग्जांपल क्या लेता है कि सो वॉलेट सो which we are using generally. So the wallet will be different for ladies and wallet will be different for gents actually. So that is the case study. So the wallet is the example. Now describe the persona. Persona बोले तो so the customer persona details will another session is there. At present persona बोले तो so आपका एज persona, आपका नाम लिख सकते हो, आपका एज, जेंडर। सो एक पेपर ले लो, नहीं तो आपको स्क्रिबलिंग पैड है, सो उसमें आप लिख सकते हो। सो डिस्क्राइब द पर्सोना आपका नाम, एज, नेक्स्ट जेंडर। सो एम्पैथी मैप किसके लिए लिख रहे हैं हम? वॉलेट के लिए लिख रहे हैं। सो द आइटम इज़ वॉलेट। नाउ पहला आइडेंटिफाई नीड्स। वॉलेट का ज़रूरत क्या है? सो वाई डू वी कैरी वॉलेट? मनी रखने के लिए, ATM कार्ड्स रखने के लिए, विजिटिंग कार्ड्स रखने के लिए, सो ID कार्ड्स रखने के लिए। सो दीज आर नथिंग बट द नीड्स, और आप ऐड कर सकते हो। सो द डिज़ायर्स, सो डिज़ायर्स, आपका डिज़ायर, सो कैसा होना चाहिए वॉलेट? सो कैसा होना चाहिए? सो बल्कि सो इट शुड बी स्लिम, लाइट वेट, सो मल्टीपल लेयर्स, सो पूरा डिज़ायर्स। फ्रस्ट्रेशंस, अब एग्जिस्टिंग वॉलेट सो आप कुछ कैरी करते हैं, सो व्हाट आर द फ्रस्ट्रेशन इन दैट? व्हाट आर द फ्रस्ट्रेशंस? इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी, बल्की और क्लमजी टू कीप ऑल कार्ड्स इन दैट, सो और हेवी टू कैरी, सो ऑल दोज थिंग्स। वो क्या है कि फ्रस्ट्रेशंस। और चैलेंजेस बोले तो सो आपका डिज़ायर्स जो है कि सो डिज़ायर्ड वॉलेट, और डिज़ायर्ड वॉलेट होने के लिए सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन गेटिंग दैट पर्टिकुलर सो वॉलेट? सो पहला, सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड what exactly is empathy with the help of an example. So example, we have taken the case of a wallet. So daily we will be using the wallet. Now what is the first is identify the needs to keep money in that. Now desires, so it should be slim, and so मेरा दूसरा डिज़ायर क्या है कि उसके साथ एक RFID टैग भी होना चाहिए, or else there should be some locking system also, digital locking system. So if I keep press numbers, then only it should open. So that may be my desire. So आपका desire लिख सकते हो उधर। Frustration, existing wallet पे so frustrations क्या है? बहुत bulky and so only 2 layers है उसमें, so I cannot keep different ID cards, money, all those things. So frustration है। Or I cannot identify the wallet also at home, so I'll keep somewhere else and I will be forgetting. So that is also another frustration. Now the challenges, what are the challenges in getting your desired one? So आप लिख दो पहले and then we'll discuss. इंडिविजुअली सबको एक्टिविटी करनी है एक पेज पे। हाँ, आपके पास पेन पेपर तो है, तो अपना आप एक वॉलेट, हमने एक प्रोडक्ट लिया है एज ए एग्जाम्पल, और उसका हमें एम्पैथी मैप बनाना है। मतलब वॉलेट ये सिंपल प्रोडक्ट के लिए हम क्या डिज़ायर करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो आप सबको अपना लिखना है, देन हम डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले आइडेंटिफाइंग नीड्स, कस्टमर पर्सोना जो होता है वो हम कल डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर पूरा एक सेशन रहेगा कि कस्टमर पर्सोना क्या होता है. यू कैन टुडे यू कैन ओनली राइट अबाउट योर नेम, एजुकेशन, जेंडर, दैट्स इट. कितने लोग वॉलेट यूज़ करते हैं? ऑलमोस्ट सभी करते होंगे. सो कैन समवन टेल मी कि क्या नीड्स है वॉलेट या पर्स की, क्या नीड है, क्यों हम यूज़ करते हैं? ये जी पूरी जिंदगी रहती है उसमें. सर मोस्टली 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पर्स में. एक तो मनी, कार्ड्स जो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो. मैं मेनली अपन ये 3 चीज़ ही कैरी करते हैं उसमें. और हाँ, और क्या ज़रूरत है? मोबाइल, हाँ वो मेरा तो वही मानना है. सर वो आपके डिजायर्स हो गए. want a wallet which include many of taken different type of material, example key, cards and money, mobile. चलो वो नीड हो गई. हाँ. तो आपका क्या डिजायर है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आई थिंक उसमें पार्टीशिपन हो, बहुत सारे पार्टीशन होने चाहिए, पार्टीशन हो जिसमें मैं अदर टाइप जो मटेरियल है वो रख सकती हूँ अलग अलग, क्योंकि सब इंक्लूड हो जाता है. अक्सर ऐसा ही रहता है कि कार्ड लेने जा रहे हैं, की मिल रही है ना, मोबाइल बीच में ही आ जाता है, वो बहुत सारा सरफेस ले लेता है, तो वो कभी भी इरिटेशन पैदा करता है. चैलेंजेस. तो मैं चाहती हूँ कि सरफेस भी थोड़ा अच्छा हो और जिस चीज़ को निकालने की आवश्यकता वही निकले. मेनली सर वाटरप्रूफ होना चाहिए. वाटरप्रूफ होना चाहिए. हाँ, बारिश में पैसे भीग गए तो गए. कार्ड्स के लिए लेमिनेटेड कवर होना चाहिए. लेमिनेटेड कवर्स होने चाहिए. सस्ता भी होना चाहिए. डिजायर्स में तो कुछ भी हो सकता है. किसी, हाँ सर, स्मॉल साइज होना चाहिए, साइज लाइक माय पॉकेट साइज. हाँ सर. सॉफ्ट होना चाहिए, हाँ. स्लिम होना चाहिए, हाँ. एंड हैविंग सो मेनी सेक्शंस पर्टिकुलरली फॉर मेमोरी कार्ड्स, कॉइन्स. ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं. कॉइन्स बहुत डिस्टर्ब करते हैं. ये स्पेशली कॉइन के लिए अलग सेक्शन हो, मेमोरी कार्ड्स के लिए भी हो. मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड हो. हाँ. हम कैरी करके ले जाते हैं स्कूल वगैरह. एंड फोटोज आल्सो. यस सर. हाँ सर. वॉलेट में जीपीएस सिस्टम भी होना चाहिए. नहीं, अभी एक एग्जांपल कहीं पर घूम जाए या कहीं पर रखने में आ जाए तो वापस मिल जाए वो उससे. क्या होना चाहिए? जीपीएस होना चाहिए उसमें. एक चिप लगी होनी चाहिए जो अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट हो. हाँ, हो सकता है. टुडे एवरीथिंग इज पॉसिबल. एंड ऐसे वॉलेट्स भी आ गए हैं आजकल. सेंसर होना चाहिए. सर. हाँ. यस सर, यस सर. सर वॉलेट के संबंध में, हाँ सर वॉलेट के संबंध में मेरा ऐसा मानना है कि पैसों के अलावा जो भी हम महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट उसमें रखते हैं, पैसे भी महत्वपूर्ण ही है. और वॉलेट में जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट और पैसे रखे जाते हैं तो वो एक उसका साइज बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है, और जेब में रखता है तो वो चोरों को, जेब कतरों को आकर्षित करता है. और तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपके पास पैसे हैं तो उनको 4 जेब है अपने पास, 2 शर्ट में है, 4 पैंट में है, तो सबको डाइवर्सिफाइड रखिए. कटेगा तो एक कटेगा, 3 जगह बचेंगे. डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. और कोई है? यस मैम. सो मैम को दे दो. एक्सक्यूज मी, वॉलंटियर. वॉलंटियर. हेलो. जनरली सर पर्स सर पहले के समय में उसमें नोट, वास्तव में उसका साइज होना चाहिए जिसमें नोट मुड़े नहीं. अमेरिका में एक बार एक पर्स बनाने वाली कंपनी, उस पर बहुत फाइन हुआ. उनका जो डॉलर था वो इतना फोल्ड हो रहा था और उस पर खूब लाखों डॉलर का
फाइन हुआ है तो सबसे पहले उसकी साइज़, जो सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा जो नोट का साइज़ है वो साइज़ की लंबाई में होना चाहिए, और उसके बाद उसमें कोई भी नोट मुड़े नहीं। तो ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब साइज़ में तो कितना छोटा रख, तो अपनी आप नोट को 4 घड़ी करके रखना तो नोट की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो वो उसके लाइफ जितने साल इसलिए नहीं चलता भारत के अंदर कि उसको फोल्ड करने का जो सिस्टम है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसके 10 फोल्ड करके बांध के रख लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो पर्स वास्तव में इसलिए बना है, उस पर्स में नोट के बजाय हम फालतू सामान ज़्यादा रखते हैं सर, इसलिए मैं पर्स रखता ही नहीं हूँ। सर हमारे यहाँ पर झाबुआ में एक बनिए की दुकान है और वो सर पर्स नहीं रखते हैं। उन्होंने एक बंडी बना रखी है और उस बंडी में उन्होंने 4-5 अलग अलग अंडरग्राउंड सर पॉकेट बना रखे और वो लेमिनेट पॉकेट है। तो इस प्रकार की बंडी सर मार्केट में होनी चाहिए ताकि पर्स का झंझट ही खत्म हो जाए। देखो, एक हमने पर्स का एग्जांपल लिया तो सबके कितने अलग अलग ओपिनियन है, और अभी अलग अलग प्रोडक्ट्स आ भी रहे। जैसे सर ने बताया, जैसे आज हाँ वो बंडी का एग्जांपल वो तो बहुत पुराना है, मतलब हाँ है ना, पुराना ही है ना। हाँ, पुरानी चीज़ों को वापस ला रहे क्योंकि उसकी ज़रूरत है। जैसे आपने बोला कि नोट फोल्ड नहीं होनी चाहिए, तो आजकल एक ऐसे बड़े जो लोग ब्लेजर्स वगैरह पहनते हैं तो वो जनरली छोटे स्मॉल साइज़ के पॉकेट नहीं यूज़ करते। एक बड़ा ऐसा पॉकेट प्लास्टिक का आता है जिसमें आप कार्ड्स भी रख सकते हो, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड भी रख सकते हो, नोट्स भी रख सकते हो, और कोई भी नोट उसमें फोल्ड नहीं होता है। और डिज़ायर्स में भी आजकल मतलब बहुत बड़ा फैशन आ रहा है, तो हमें प्योर लेदर का ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसा चाहिए, या फिर उसमें डिजिटल चिप होना चाहिए, लॉक अच्छे से होना चाहिए, ये बहुत सारे डिज़ायर्स आ रहे हैं। ठीक है, और कोई है पर्स के बारे में कोई बताना चाहता है? इसमें सुरक्षा और सुविधा के बीच संतुलन होना चाहिए। इसमें एक ऐसा वो होना चाहिए जिससे उसकी सुरक्षा व्यवस्थित रहे। हाँ, दिस साइड सेंसर लगा होना चाहिए, लगाना चाहिए। और शायद आ भी रहे हैं ऐसा। हाँ, आ रहे हैं। अभी लंदन से एक पर्स आया है, उसमें ऐसी सुविधा है, यदि आपका पर्स यदि कहीं गिर जाता है तो वो आपको सेंस कर देता है कि आपका पर्स यहाँ रखा हुआ है, कृपया आप इसे ले लें। पासवर्ड भी होना चाहिए, उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। जैसा मैडम ने बताया ना कि 10 किलो का वेट तो हर हाल में रहता है, ये बात सही है। कभी कभी जब रिंग बजती है तो इमीडिएटली हम मोबाइल उठा नहीं सकते, मिलते ही नहीं किधर की जेब में रखा है, और हमेशा घर वालों को शिकायत रहती है कभी नहीं मोबाइल उठाती टाइम पे। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि अलग अलग उसमें सारे सेक्शन हो, और जिसमें डॉक्यूमेंट्स है, कागज़ है, या हमारी जो भी सामग्री है, गोली है, दवाई, ये सारी चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। और वेट बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें रखने के बाद भी वेट कम होना चाहिए, जिससे हम कंधे पे टांग के हमारा काम कर सकें। देखो नहीं, देखो हम इससे ये समझ सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है, उसी में जेंडर वाइज नीड्स अलग हैं, कि महिलाओं की नीड्स अलग है, पुरुषों की नीड्स अलग है। हम जब पर्स यूज़ करते हैं तो हमें लगता है कि हम उसमें ATM कार्ड्स रखें, या फिर पैन कार्ड रखे, आधार कार्ड रखे, या सारी चीज़ें रखे, और जो भी हमारे पास कोई भी बिल आता है तो हम उसमें पटक देते हैं, पैसे पटक देते हैं, राइट। सिम कार्ड रखते हैं, मेमोरी कार्ड रखते हैं। तो जेंट्स के लिए अलग हो गया। तो हर एक प्रोडक्ट में जो हम कस्टमर पर्सोना की यहाँ बात हो रही थी ना, जो ऊपर लिखा था कस्टमर पर्सोना, इट इज़ अबाउट दैट ओनली, कि हर एक कस्टमर के अकॉर्डिंगली भी हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, हर एक की नीड चेंज हो जाती है। जैसे सर बोल रहे कि मैं यूज़ ही नहीं करता, या फिर मुझे भी लगता है कि मैं नहीं रखूँ तो भी चलेगा, क्योंकि पैन कार्ड, आधार कार्ड मेरा मोबाइल फ़ोन में है, ATM कार्ड है, वो सालों से यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आजकल ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 4-5 साल पहले यूज़ किया था, एक दिन मुझे सच में ज़रूरत पड़ी कि जहाँ मुझे यूज़ करना है और मुझे पासवर्ड याद ही नहीं आया और वो ब्लॉक हो गया। तो मैंने कहीं और जाके एक दुकान में जाके पेटीएम किया, उनको बोला भैया जी मुझे कैश दे दो, और मैंने दे दी शिलोंग एयरपोर्ट पे। तो कब ऐसा होता है। तो आजकल सारी चीज़ें, जैसे हर एक चीज़ में एक ही प्रोडक्ट है, बट एक प्रोडक्ट के लिए इनकम वाइज, जेंडर वाइज, एज वाइज सबकी ज़रूरतें अलग है। अगर आप जॉब कर रहे हो
तो आपको उसको उसमें लैपटॉप भी रखना है, छाता भी रखना है, पानी की बोतल भी रखनी है। कोई हाउसवाइफ है तो उसमें और कुछ रखना होता है। तो हर एक जेंडर वाइज या फिर हर एक कस्टमर के पर्सोना वाइज अलग अलग प्रोडक्ट बन सकता है और बनाया जा भी रहा है। यही हम उससे सीख रहे हैं सर। यस सर, यस। मेरी एक पोती है 13 साल की, तो उसके जन्मदिन पे उसने जिद की कि मुझे एक स्लिंग बैग दिला दो, राइट ना। दिलाया उसको, एक हाई डिज़ाइन कंपनी है जिसका बनाया हुआ था वो। तो मैंने उसको पूछा तुम रखती क्या हो इसमें? 13 साल का बच्ची है। एक लिप ग्लॉस, एक छोटा सा डीओ, वेट वाइप्स, फ़ोन भी नहीं रखती है। फ़ोन, मैंने कहा फ़ोन इसके अंदर डालो, बोलती है नहीं, फ़ोन अगर इसके अंदर डालूंगी तो दादू फ़ोन दिखाई कैसे देगा। तो 13 साल जेंस जी की रिक्वायरमेंट ही अलग है। उसके लिए एक पर्स जो है वो स्टाइल स्टेटमेंट है, ना कि ज़रूरत है। ऐसे ही शायद पर्स, जैसे सर ने बोला, अपने पास सारी आइडेंटिटी इसके अंदर है, पैसा इसके अंदर है, तो पर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अभी। That's another, yes sir, yes. So lot of customization is happening in these bags also, sir. So bags gender wise, and then again gender may, so whether he's a student or employee, and for mothers who are having kids, for them also there are so specific bags such that they can keep all the baby requirements in that. So the lot of innovation is happening in that. So a activity, so हम क्या समझने चाहिए कि, so this is what empathy is. So when the student is coming up with a problem, we need to ask all these questions to the student also. So when he says that, sir, I'm coming up with this particular solution for so and so problem, we need to ask what exactly is the necessity of that particular item. Suppose if he comes, sir, I'm preparing a torch, brand new torch. So what is the necessity of that? What is the frustration in existing torch and desires? So these things we need to ask the students, and accordingly we need to design our products. आपको बोलना है कुछ? सर, पर्स के साथ में ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे घर से हम निकलते तो हमको लगता है वो चीज़ हमने रख ली, लेकिन स्कूल जाते तो वो नहीं निकलती है। तो स्कूल मतलब निकलने के पहले कैसे उसमें डिस्प्ले आ जाए कि ये चीज़ें इसमें हैं। if anything is missed, if anything is missed, जैसे वो डिस्प्ले आ जाए, ताकि जैसे दवाई हमको लग रहा है रखी उसमें नहीं है तो वो बता दे कि नहीं है, तो हम ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करें इस तरह से। चलो, गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। तो इसमें लर्निंग यही थी कि एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया पर्स का, और जब हम एम्पैथी मैप बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक पर्स के कितने डिज़ायर्स हो सकते हैं हमें। जैसे सर का तो अलग ही लेवल का है, किसी को उसमें डिस्प्ले चाहिए, किसी में पासवर्ड चाहिए, किसी को चिप चाहिए। तो यही एक छोटे से एग्जांपल से हम सीखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे सर ने श्याम सर ने हमसे पहले एक एक्टिविटी कराई कि हमें बस एक छोटा सा स्नैक पॉकेट बनाना था। हमने विदाउट किसी को पूछना हमने बनाना स्टार्ट किया, राइट। तो यहाँ पे जो मिसिंग था, वो जो मिसिंग लिंक है वही यही है कि वी डिडंट एम्पथाइज विथ अदर्स। हमने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि प्रॉब्लम क्या है। लोग, हमारा जो नेबर है उसको एक्चुअली में कौन सा स्नैक पसंद है वो हमने उसको पूछा ही नहीं, और हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाता है, तब हमारा स्टार्टअप फेल हो जाता है। और यही सीख इस एक्टिविटी से है। एक छोटा सा पर्स का एग्जांपल है, तो एक पर्स का एग्जांपल लिया तो हमारे उसमें कितने सारे अलग अलग डिज़ायर्स है, कितने सारी प्रॉब्लम्स है, और हमें कितने सारी चीज़ें पता चली। तो एक पर्स इंडस्ट्री में, और अभी बूम हो भी रही है क्योंकि डिजिटल पर्स आ रहे हैं, लॉक पर्स आ रहे हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें आ रही। जेनजी का एग्जाम्पल सर ने बताया कि जेनजी को कुछ अलग रिक्वायरमेंट है। किसी को बस पर्स दिखाना होता है कि हम कौन से ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो वो भी तो एक डिज़ायर है। तो एक प्रोडक्ट में कितने सारे चीज़ें हो सकती है व्हेन वी एम्पथाइज विथ, और जब हम एग्जैक्ट टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं तब जाके हम अच्छे से प्रोडक्ट बना सकते हैं। और आपने जितने प्रॉब्लम्स बताए उतने सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, उतने अलग अलग प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, क्योंकि उतने अलग अलग कैटेगरीज के कस्टमर है। वी डोंट हैव टू रीच टू 140 करोड़ पॉपुलेशन। हमें अपने कैटेगरी के 10 लाख कस्टमर भी मिल गए
या फिर 1 लाख कस्टमर भी मिल गए तो भी हमारा स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा। बस अपने कैटेगरी के, फॉर एग्जांपल मैम ने अपना एग्जांपल लिया, आपने आपकी कैटेगरी के जो जिनको सब कुछ लाइट वेटेड चाहिए, ऐसे एक 5,000 10,000 भी लोग ढूंढ लिए तो भी आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा। दैट इज डिफाइनिंग कस्टमर पर्सोना, दैट इज एम्पथाइजिंग विद द कस्टमर एंड देन बिल्डिंग द प्रोडक्ट। ओके, विल स्टॉप हियर, विल स्टॉप फॉर द लंच, विल लंच ब्रेक करके फिर से वापस आएंगे और फिर उसके बाद में जो करना है, हमें ग्रुप एक्टिविटी करनी है। आने के बाद हमें 5-5 लोगों की टीम बनानी है और इसके बाद की जो एक्टिविटी होगी वो टीम एक्टिविटी ही रहेगी। तो एक काम करो कि आप अपने अपने हिसाब से एक तो आइडेंटिफाई करके रखो, नहीं तो हम करा देंगे। 5-5 लोगों की टीम बनानी है आने के बाद। ओके, विल स्टॉप हियर फॉर द लंच। थैंक यू सो मच।